most commonly with reference to the heightened internationalism of financial transactions. So this catchword sums up the phenomenon in which financial transactions increasingly transcend the geographical and the limitations of local financial markets. So giving rise to a single uniform global market, while the phrase internationalism refers to cross-border transactions among national markets. Globalization goes beyond national frontier to create a borderless market in which national borders gradually disappear. So in 1991, LPG model launched by the मनमोहन सिंह. उस समय आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. उस समय 1991 में एलपीजी मॉडल जो लॉन्च हुआ, एलपीजी दैट मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन के बाद बियॉन्ड द बॉर्डर ट्रेडिंग काफी ज्यादा बढ़ा है, और बियॉन्ड द बॉर्डर ट्रेडिंग बढ़ने के कारण हमारे पास ग्लोबली कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी है. बिकॉज कि ग्लोबल से ट्रेड करने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी भी होनी जरूरी है. फॉरेन करेंसी रहेगा तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे. सो ग्लोबलाइजेशन आपका धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है रादर प्रीवियस आफ्टर इंडिपेंडेंसी. सो 1991 के बाद आपका बहुत सारे जो बिजनेस थे उसमें बहुत सारे रूल्स थे, नॉर्म्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको गवर्नमेंट ने हटा लिया. और हटाने के बाद जो बिजनेस ने काफी अच्छा फ्लरिश किया बियॉन्ड द बॉर्डर मार्केट में. आज उन्हीं का आप एग्जांपल देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है, ट्रांसनेशनल कंपनीज जो है, वो उसी का एक एग्जांपल है. जो आज बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनी इंडिया की भी है और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो रही है. So, the international financial system is categorized by the following types of institutions. So, financial markets, I have already discussed in the previous class. The financial market are those markets where securities are traded. It has two types. First is called money market and second is called capital market. Money market are those markets where short-term securities are traded, and capital market are those markets where long-term securities are traded. Capital market has two types. First is called primary market and second is called secondary market. That is also called stock exchange, like Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, and over-the-counter exchange of India, etc. So second one be the banking sector. Third one, foreign exchange markets, and D, a special financial institutions such as the World Bank, IMF, etc. इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक, जिसको IBRD भी बोलते हैं, है ना. तो नेक्स्ट क्लास डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक ऑन योर स्क्रीन, डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर. The banking sector too has gone through revolutionary changes. At least three trends characterize the future of banking the world over. First one is the bank's role as funding intermediaries is diminishing, and instead banks are taking on the role of broker and or underwriter for credit transactions. Second one is bank's formerly protected turf is being invaded by investment banks, thrifts, insurance companies, and even retail firms. In response, banks are expanding their activities into domain of investment banks and insurance companies. And finally, third one is banks are expanding geographically as they compete in interstate and even international markets. However, although the role banks play as funding intermediaries is diminishing, it will not disappear entirely. Banks' ability to fund loans will continue to be important. So, foreign exchange transaction. What do you mean by foreign exchange transaction? Foreign exchange transaction and interest rate swaps are now the most important sources of revenues from off-balance sheet activities. Profits
in foreign exchange trading come from two main sources. First, trading profit generated by the bank trading for its own accounts, and second one is fees generated by trading in currencies for its customers. So multinational banks are very active in euro currency market, wherein they gather deposits and make loans usually in euro dollars. Interest abridged transactions are frequently entered into, that is borrowing funds in one foreign currency and country are making loans in another currency and country due to substantially different interest rates across countries. So development in the foreign exchange market. So what is foreign exchange market? Where currencies are inverted into domestic currency, and a foreign exchange market exists because of trade between countries within different currencies. So अगर जब से LPG मॉडल आया इन 1991, इसको मनमोहन राव मॉडल भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इसलिए राव मनमोहन मॉडल भी एलपीजी को बोला जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड राव मनमोहन मॉडल. सो यहाँ पे आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं बियॉन्ड द बॉर्डर, चाहे वो यूरोपियन कंट्री के थ्रू हो, यूएसए कंट्री के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप जिस कंट्री से ट्रेडिंग कर रहे हैं बियॉन्ड द बाउंड्री, जिस कंट्री से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी करेंसी आपके पास होनी चाहिए. बिकॉज कोई भी स्टैंडर्ड कंट्री लाइक यूएसए से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो रुपीज में बात नहीं करेगा आपसे, आपसे डॉलर में बात करेगा. तो आपके पास डॉलर की अवेलेबिलिटी, डॉलर करेंसी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए. तो अगर फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं है तो आप ग्लोबली डॉलर को रेज कर सकते हैं. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है लाइक अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट एटसेट्रा. So foreign exchange market exists because of trade between countries with different currencies. That is, exporter prefers not to hold foreign currencies. They want to be paid in their national currency. Foreign exchange transactions have thus become as integral, even essential part of international trade and finance. सो आपके पास रुपीज है, आप इंडिया में हैं, आप इंडिया के एक्सपोर्टर हैं और आपको एक्सपोर्ट करना है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास तो इंडियन रुपीज है, डॉलर अवेलेबल है नहीं. बट अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं रहेगा तो आप रुपीज से डॉलर में कन्वर्जन नहीं कर सकते और ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते यूएसए के साथ. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होना बहुत जरूरी है ताकि आप रुपीज को डॉलर में कन्वर्जन करके आप अमेरिका के साथ ट्रेडिंग कर सकें, रुपीज को यूरो में कन्वर्ट करके आप यूरोपियन कंट्री से ट्रेडिंग कर सकें, ये मैटर करता है. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर ट्रांजैक्टिंग बियॉन्ड द बॉर्डर मार्केट ट्रेडिंग. सो इन द इमीडिएट aftermath of World War II, foreign exchange trading was relatively limited, as most major currencies were subject to extensive exchange control, and the opportunity for the movement of funds across national boundaries were severely limited. The subsequent recovery and growth of the world economic brought to a gradual relaxation of these controls, and as a result, foreign exchange trading became more and more active. So foreign exchange market is important market for those traders who are trading beyond the border. Global sources of financing. आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, चूंकि आप बियॉन्ड द बॉर्डर मार्केट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं दूसरे कंट्री के साथ, तो वहां पे ग्लोबल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट होता है कि कहां से आप फंड को रेज कर सकते हैं. एंड द फर्स्ट सोर्स इज द फॉरेन बॉन्ड मार्केट. द फॉरेन बॉन्ड मार्केट इज दैट पोर्शन of the domestic bond market which represent issues floated by foreign companies or governments.
In context of United States of Germany, the bond issues floated by Indian or any other foreign corporate or government and subscribed by residents or corporate of these countries will represent the foreign bond market for them. The main advantage of using foreign bonds market is increase in reputation due to close scrutiny by institutional investors, diversifying and broadening of investor base and lower cost of funds. The foreign bond instruments are primarily of three types, which are fixed rate issues, second is floating rate issues, and third one is equity related issues. So the foreign bond market is very important for globally sources of financing. So second one is the foreign equity market. The foreign equity market, when companies decide to raise equity capital from diversified investors, the natural choice is cross-listing of share of the company over various stock exchanges located in different countries, either through initial public offering or through seasoned equity offering. तो अगर इक्विटी के थ्रू कैपिटल को रेज करना है, फॉरेन करेंसी में रेज करना है आपको कैपिटल को, तो आप अपनी इक्विटी शेयर को डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाइए। जो डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां आपको लिस्टेड करवानी होगी, ताकि वहां के इन्वेस्टर आपके कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। और जब फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी करेंसी भी वहां पे डॉलर में या फिर यूरो में, आप जिस कंट्री में इश्यू कर रहे हैं इक्विटी शेयर, उस कंट्री के करेंसी को आप गेन कर सकते हैं, आप कैपिटल उसके थ्रू रेज कर सकते हैं, या वो आईपीओ के थ्रू हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी फर्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में इक्विटी शेयर इश्यू करती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट टाइम टू टाइम बीच में भी वो सीजनड इक्विटी ऑफर करती है, जो जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉरेन लिस्टिंग allow companies to diversify equity funding risk. Sometimes the equity offering are large enough that a single domestic market may not meet the entire funding requirement. So the foreign equity market is very important market because companies यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करती है, डिफरेंट इक्विटी शेयर इशू करती है, डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज में इशू करती है, वहां पे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कैपिटल को रेज अपनी करेंसी में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फॉरेन बैंक मार्केट। द फॉरेन बैंक मार्केट रिप्रेजेंट्स दैट पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक बैंक लोन सप्लाइड टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूज इन अनदर कंट्री। सो फॉरेन बैंक मार्केट represent that portion of domestic bank loan supplied to overseas customer for use in another country. So very important concept foreign bank market, about foreign bank market, और इसके थ्रू भी आप ट्रेडिंग बहुत इजी वे में कर सकते हैं ओवर द बॉर्डर, है ना, बियॉन्ड द बॉर्डर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस। Large scale capital intensive long term capital investment are usually financed through project finance. Project finance is a non recourse lending secured by project and potential cash flows associated with the project. So project finance large scale की कंपनी में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे होता है तो प्रोजेक्ट फाइनेंस के थ्रू ही वहां पे कैपिटल को रेज किया जाता है, कैपिटल आप वहां से रेज कर सकते हैं। द यूरो करेंसी मार्केट। द यूरो करेंसी मार्केट इज आउटसाइड द लीगल परव्यू ऑफ द कंट्री इन हुज करेंसी द फाइनेंसेस आर रेज्ड। द टर्म यूरो इज affixed to an offshore currency transaction. So euro means offshore currency transaction, that is आप इसको यूरो करेंसीज में अगर आपको कैपिटल को रेज करना है तो आप वहां पे कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो यूरो लोन्स, नेक्स्ट वन इज यूरो लोन्स आर essentially short term accommodation provided by bankers to their clients. The interest charge is a markup on the
London Interbank Offered Rate, LIBOR. It is also abbreviation of London Interbank Offered Rate, LIBOR, which varies according to the credit worthiness of the borrowing company. कंपनी का जितना क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होगा उसका लिबोर उतना बेटर होगा, उसको फंड उतना ही इजी वे में प्रोवाइड हो जाएगा, कैपिटल को वो रेज कर सकता है डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू। और जितना क्रेडिट वर्दीनेस आपका खराब रहेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू, जितना खराब आपका क्रेडिट वर्दीनेस होगा, आपको लोन लेने में उतनी ही मुश्किल होगी, अदर कंट्रीज भी आपको इग्नोर करेगा लोन प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट वन इज यूरो कॉमर्शियल पेपर्स। Euro commercial papers are short-term promissory bearer euro currency notes. Bearer that means कि ये transferable होगा, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। These are typically issued at a discount of their face value, which represent the yield to the investors. Syndicated euro currency loan are given by the syndicates of banks to borrowers at a variable rate of interest like LIBOR plus 0.25%. तो एक आप प्रोमिसरी नोट्स एक तरह से आप इसको मान सकते हैं, यूरो करेंसी प्रोमिसरी नोट्स है, इसमें प्रॉमिस होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पे करना होगा। सो नेक्स्ट वन इज रिवॉल्विंग अंडरराइटिंग फैसिलिटी। डू यू नो अबाउट अंडरराइटिंग? अंडरराइटिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्विटी शेयर मार्केट। जब भी कंपनी को अपना इक्विटी शेयर मार्केट में सेल करना होता है तो जरूरी नहीं है कि कंपनी अपनी पूरी इक्विटी शेयर को मार्केट में सेल कर पाएगी, और कंपनी के पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं ताकि वो इक्विटी के थ्रू कैपिटल फंडेड होकर उस प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। सो अगर इक्विटी शेयर पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका प्रोजेक्ट आगे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और एज पर द कंपनी एक्ट 2013 ये मेंशन है कि आपने जो इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किया है एटलीस्ट 90% आपका सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी वो इशू सक्सेस होगा। अदरवाइज आपका अगर 90% सब्सक्रिप्शन से नीचे चला जाता है आपका सब्सक्रिप्शन, तो वहां पे सारा का सारा जो आपने कैश कलेक्ट किया है, कैपिटल कलेक्ट किया है, वो आपको रिफंड करना होगा। तो यहां पे कंपनीज अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है ताकि उसका इक्विटी शेयर मार्केट में सेल हो सके, और उसके अगेंस्ट में कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन पे करती है अंडरराइटर्स को। एटलीस्ट 90% तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए ताकि एक कंपनी अपनी कैपिटल को सेव कर सके, बचा सके। अदरवाइज वो सारा का सारा रिफंड हो जाएगा, आप उसको नहीं रख सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। So revolving underwriting facility involves sale of bearer notes to investors on a revolving basis. The investors under RUF undertake to make certain amount of funds available to the borrowers up to a certain date during which the borrowers is free to repay and redraw the funds after giving due notice. So next one is Eurobond. Eurobonds are long-term unsecured debt securities. I have already discussed about unsecured debt securities. Secured means at the time of liquidation, priority right जो रखता है, you have priority right to receive some money from company at the time of liquidation. That is called secured. Unsecured means at the time of liquidation आप रीपेमेंट का प्रायोरिटी राइट नहीं रखते हैं। दैट मीन्स कंपनी में अगर सबसे लास्ट में जो पेमेंट सबसे लास्ट जो पैसा बचता है, जो भी कैपिटल बचा रहेगा उसी में से आपको पेमेंट करेगा, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड। दैट मीन्स इट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टर्स। Euro bonds are long-term unsecured debt securities usually
fixed rate instruments with bullet repayments. These are targeted at high net worth individual and institutions and are listed on stock exchanges such as Luxembourg or London to provide liquidity. सो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे यूरो बॉन्ड के थ्रू कैपिटल को रेज करना होगा. कभी कभी लिक्विडिटी शॉर्टेज होती है. लिक्विडिटी दैट मींस वर्किंग कैपिटल. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन MMPF 001 पेपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो वर्किंग कैपिटल अगर आपको मेंटेन करना है, वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज आपकी कंपनी को लिक्विडेशन की ओर लेके जाएगी. आपकी कंपनी कोलैप्स हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो आपको वर्किंग कैपिटल को मेंटेन रखना है और वर्किंग कैपिटल को मेंटेन रखने का एक सोर्स है कि आप इन स्टॉक एक्सचेंजेस में अपनी इक्विटी शेयर को, यूरो बॉन्ड को आप लिस्टेड करवाएं और वहां से इन्वेस्टर्स आपको फंड प्रोवाइड करेगा, आपका कैपिटल रेज करेगा. So next one is euro equities are company's shares which could either be directly offered listing on the foreign stock exchanges or take the form of global depository receipts with shares underlying such receipts. So next topic on the screen, raising of foreign capital in India. So some norms, some rules are applicable for raising of foreign capital in India. So eligibility to issue depository receipt, how to issue a depository receipt to other countries to raise the foreign capital fund. So certain eligibility declared by the regulatory body, how to issues depository receipts to other countries. So the following persons are eligible to issue or transfer permissible securities to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts. First, any Indian company, listed or unlisted, private or public, whatever. So what is Indian company? Those companies which are registered under the Companies Act 2013 or any other previous act, and their registered office situated in India. तो ये सारी कंपनी इंडियन कंपनी कहलाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो. तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, और या एनी अदर प्रीवियस एक्ट के थ्रू आप रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको. तो इंडियन कंपनी एलिजिबल है डिपॉजिटरी रिसीट को इशू करने के लिए. सेकंड पॉइंट इज एनी अदर इशूअर ऑफ परमिसेबल सिक्योरिटीज. थर्ड वन इज एनी पर्सन होल्डिंग permissible securities which has not been specifically prohibited from accessing the capital market or dealing in securities. Permissible security जो होल्ड कर रहा है वो सभी इशू कर सकता है, हाँ बशर्ते अगर उसे प्रोहिबिट किया गया है किसी कारणवश कि कैपिटल मार्केट और डीलिंग इन सिक्योरिटीज में ये परमिसेबल नहीं है, तो उस केसेस में वो डिपॉजिटरी रिसीट को इशू नहीं कर पाएगा. वो प्रोहिबिशन उस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा. So second, unsponsored depository receipts on the back of listed permissible securities can be issued only if such depository receipts, number one, give the holder the right to issue voting instruction. आपको ये बताना पड़ेगा कि होल्डर का राइट क्या है. जो आपने डिपॉजिटरी रिसीट इशू किया है उसको लेने से होल्डर को राइट क्या मिलेगा, क्या इंस्ट्रक्शन आपको, वोटिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सारा बताना पड़ेगा कि आप कितने रुपए का डिपॉजिटरी रिसीट लेते हैं तो आपको कितना वोटिंग राइट अलाउ होता है. एंड सेकेंड, आर लिस्टेड ऑन एन इंटरनेशनल एक्सचेंज. आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लिस्टेड होना पड़ेगा ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड
में वो इक्विटी या वो आपका जो डिपोजिटरी रिसीट है वो परचेज किया जा सके डिफरेंट इन्वेस्टर्स के थ्रू, डिफरेंट इन्वेस्टर और डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू. So issues, how to issues a depository receipt. A foreign depository may issue depository receipt by way of a public offering or private placement or in any other manner prevalent in a permissible jurisdiction. So an issuer may issue permissible securities to a foreign depository for the purpose of issue depository receipt by any mode permissible for issue of such permissible securities to investors. The holders of permissible securities may transfer permissible securities to a foreign depository for the purpose of the issue of depository receipts, with or without the approval of issuer of such permissible securities through transaction on a recognized stock exchange, bilateral transaction, or by tendering through a public platform. So आप इसके थ्रू इश्यूज कर सकते हैं अपने फॉरेन करेंसी को, अपने डिपोजिटरी रिसीट्स को. लिमिट्स, व्हाट आर द लिमिट्स फॉर रेजिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया? So the aggregate of permissible securities which may be issued or transferred to foreign depositories for issue of depository receipt along with permissible securities already held by persons resident outside India shall not exceed the limit on foreign holding of such permissible securities under the Foreign Exchange Management Act 1999. So as per the Foreign Exchange Management Act 1999 में जो भी आपको लिमिट प्रोवाइड किया गया है कि आप उस लिमिट से ज्यादा आप नहीं इशू कर सकते हैं डिपोजिटरी रिसीट को, तो आपको वहां पे उस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, उस रिस्ट्रिक्शंस को आपको मानना पड़ेगा. So second one is the depository receipts may be converted to underlying permissible securities and vice versa. So next topic, the process of issuing GDR, that is also called abbreviation is Global Depository Receipts. अगर आपको यूएस डॉलर में करेंसी को रेज करना है तो आप अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट को इश्यू करते हैं. एक्सेप्ट यूएसए, अगर आप यूएसए को छोड़कर कहीं और भी आप फॉरेन करेंसी को रेज करना चाहते हैं तो वहां पे आपको ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट को इशू करना होगा ताकि डिफरेंट कंट्रीज के करेंसी को आप रेज कर सकें. So the process of issuing GDRs by a company typically involves the following steps. You can see on the screen the steps. One is the domestic company enters into an agreement with the overseas depository bank for the purpose of issue of GDR. This is known as a depository agreement. Second one is the overseas depository bank then enters into a custodian agreement with a domestic custodian bank. आप किसी भी अदर कंट्रीज में अगर कैपिटल को रेज करना चाहते हैं तो कस्टोडियन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और कस्टोडियन रूल्स बहुत ही टफ होता है. इंडिया जैसा नहीं है कि आप कोई भी कंपनी आती है और यहाँ पे इशू कर देती है अपना कैपिटल. अगर यूएस अमेरिका में आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करना चाहते हैं तो वहां के नॉर्म्स को, वहां के रूल्स को फॉलो करना होगा, तभी आप वहां पे सेल कर पाएंगे. और इतना आसान वो होता नहीं है. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा होगा कि इंडिया में जो चीजें बहुत ही ज्यादा ह्यूज कंजम्पशन हो रहा है उसको अमेरिका ने बैन करके रखा है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्म करता है, वो वहां के एनवायरनमेंट के लिए हार्म करता है. सो आप इन्वेस्टमेंट भी आप वहां पे रेज करवाना चाह रहे हैं, आप कैपिटल रेज करवाना चाह रहे हैं, वहां के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना आप चाह रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा. आपको कस्टोडियन के सारे रूल्स को फॉलो करने होंगे. So third step is the domestic custodian, which is an agent of the depository bank, holds the equity shares of the company. So next, step 4 is on the instruction of domestic custodian, the overseas depository bank issues depository receipts against the said equity share to foreign investor in foreign currency.
So next instrument, international instrument, which is called external commercial borrowings, ECBs, external commercial borrowings. So what is external commercial borrowings? External commercial borrowings are commercial loans raised by eligible resident entities from recognized non-resident entities. The main attraction for using this type of funding is the low interest rate at which they can be raised. तो ECB में आप देखेंगे कि आपको लो इंटरेस्ट रेट के थ्रू कैपिटल को रेज हो जाता है, कैपिटल को आप रेज कर लेते हैं. So forms of ECB can be raised in the form of loan including bank loans, floating, fixed rate notes, bonds, debentures, then fully and compulsorily convertible instruments, trade credits beyond 3 years, FCCBs, FCEBs, and financial lease if they are raised in convertible currency. Who is eligible borrowers? All entities eligible to receive FDI, foreign direct investment. So further, the following entities are also eligible to raise external commercial borrowing: port trust, units in a special economic zone, SIDBI, and Exim Bank of India, Export Import Bank of India. So last technical point is minimum average maturity period, MAMP. The maturity periods can range from 1 year to 10 years depending on kind of borrowers and purpose of borrowing. 1 साल से 10 साल तक के लिए हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि बोरोवर कौन है और कितने सालों के लिए वो लोन लेना चाहता है या लोन रिसीव करना चाहता है, उसका प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. So next topic is burning issues, foreign direct investment. So I have discussed about LPG model, liberalization, privatization and globalization. Liberalization means आप बहुत सारे बिजनेस में लिबरल हुए हैं, वहां के सिस्टम को आपने लिबरल किया है. पहले बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे इंडस्ट्री को अपने अंडर में करके रखा था, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया. क्यों? क्योंकि आप लिबरल हुए, लिबरल पॉलिसी को आपने इनहेंस किया. बहुत सारे बिजनेस करने में बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग पॉलिसी लगता था, ट्रिपल विंडो, क्वार्टर विंडो प्रोसेसिंग सिस्टम रहता था, जिससे लोग भारी परेशानी झेलते थे. सो वहां पे सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू बिजनेस को ऑपरेट किया गया कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंगल विंडो प्रोसेसिंग करवाइए और आपका काम हो जाएगा, आप बिजनेस करने के लिए सक्सेस है. सो एलपीजी मॉडल के बाद धीरे धीरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा अच्छा एक्सटेंशन मिला और धीरे धीरे एफडीआई का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे काफी ज्यादा एक्सटेंड हुआ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ की कंपनी का इक्विटी शेयर अगर कोई अमेरिका का इन्वेस्टर परचेज कर लेता है, दैट मींस एफडीआई. तो पहले बिफोर 1991 लोग डरते थे कि एफडीआई आएगा तो सारी कंपनी पे फिर से विदेशियों का राज हो जाएगा, फिर से विदेश लोग यहाँ पे सबको कब्जा कर लेंगे. इसीलिए बहुत लिमिटेड सोर्स के थ्रू ही एफडीआई को अलाउ किया जाता था. बट आगे के दिनों में जब हमारे यहाँ की कंपनियां एमएनसीज में कन्वर्ट हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज बन गया, ट्रांसनेशनल कंपनी बन गया, इंटरनेशनल कंपनीज बन गया, तो उस केस में हमें करेंसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी, हमें फंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी. तो उस केस में एफडीआई को इनवाइट करना सबसे बेटर ऑप्शन रहा था. तो आज के डेट में आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे कुछ ऐसे बिजनेस है जहां 100% एफडीआई है. दैट मींस कि 100% बाहर के लोग उस इक्विटी शेयर को खरीद सकते हैं. So, foreign direct investment is the investment through capital instruments by a person resident outside India. That means a foreigner, non-resident. So, in an unlisted Indian companies, in 10% or more of the post-issue paid-up equity capital
or a fully diluted basis of a listed Indian companies. Foreign direct investment is very necessary for any developing country as it brings not only widely needed financial resources but new technology as well. So foreign portfolio investment, it is another type of investment option. Foreign portfolio investment, a share, debenture and warrants issued by a body corporate listed or to be listed on a recognized stock exchange in India. Units of schemes launched by mutual funds under Chapter 6, 6A and 6B of the Securities and Exchange Board of India, Regulation 1996. तो ये सारे रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा, ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, तभी आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कैपिटल को रेज कर सकते हैं. Units of a scheme floated by a collective investment scheme in accordance with the Securities and Exchange Board of India, Regulation 1999. Derivatives traded on a recognized stock exchange. Units of real estate, investment trust, infrastructural investment trust, and units of category 3 alternative investment funds registered with the board. Next one is Indian depository receipts. Any debt securities or other instruments as permitted by the Reserve Bank of India for foreign portfolio investor to invest in from time to time. And last one is such other instruments as specified by the board from time to time. So next unit is unit 12. You can see on the screen other modes of financing. So the objective of the units are to provide an understanding of non-traditional sources of long-term financing, focus on non-traditional source of short-term financing. So structure of this units are introduction, non-traditional source long-term financing, leasing and hire purchase, suppliers credit, asset securitization, venture capital, and non-traditional service of short-term financing. So introduction of these units are raising fund is an important activity of finance managers. Business units require funds for two reasons: to acquire fixed assets and to run the operation of the units. तो फंड रेज करने का जो मेन जो रीजन है वो है या तो आपको बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना है, उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, या डे टू डे जो ऑपरेशनल एक्टिविटी कंपनी की चल रही है उसको ऑपरेट करने के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है. एंड सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द नीड फॉर फंड्स एंड टिपिकली अ ग्रोइंग फर्म नीड्स मोर फंड्स ईयर आफ्टर ईयर. So finance managers choose a particular source of capital after considering the following issues. Number one, whether the duration for funds required and funds available match. आपका ड्यूरेशन क्या होगा फंड का, कितने दिनों के लिए आपको फंड चाहिए, और उस फंड को जितने दिनों के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट है उससे कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा मैच कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा. व्हाट इज द साइज ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट. फंड्स रिक्वायरमेंट का साइज क्या है, क्या वो बहुत बड़े ह्यूज साइज में है या स्मॉल साइज में है या मीडियम साइज में है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा. What is the risk involved in the investments for which funds are demanded? Next one is whether the funds are required urgently. अगर आपको urgently required है तो वहां पे किस सोर्स को आपको सिलेक्ट करना होगा, फंड को कैसे रेज करेंगे, how to raise fund. It is important question for finance manager. What is the current and future financial market scenario? अभी का present and future market फाइनेंशियल मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप लोन कहां से रेज करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. सो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज raised when the need for funds is for more than 1 year. Typically, long term finance is required for acquisition of fixed assets having a life more than 1 year or investments which have long term impact on the earnings of the company. Leasing and hire purchase, it is the first source of finance. Leasing and hire purchase. Firm need finance to acquire assets instead of borrowing and acquiring asset.
It is possible for firm to acquire the asset on lease. There are two type of leasing: operating lease and financial lease. So आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और मशीन का वैल्यू है 2 करोड़ रुपीस। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप 2 करोड़ रुपया लगाकर उस मशीनरी को परचेज कर ले, या फिर वो मशीनरी अगर लीज पे मिल रहा है यानी कि भाड़ा पे आपको दे रहा है तो आप उसको भाड़े पे लेके आप यूज करें, रेंट पे, जिसको रेंट पे आप बोलते हैं। तो अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप अगर देख रहे हैं कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आप लीज पे ले लीजिए, रेंट पे ले लीजिए। ये जस्ट लाइक वैसा ही है कि आप अगर कोई मकान खरीद नहीं सकते हैं तो आप रेंट पे तो रह ही सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको लीज पे या हायर परचेज पे आप उसको खरीद सकते हैं। हायर परचेज दैट मींस इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जैसे आपने कोई कार ले लिया है हायर परचेज के थ्रू, तो आप ईएमआई पे करते रहें टाइम टू टाइम। जब आपका कंप्लीटली ईएमआई पेड हो जाएगा तो कार आपके नाम पे हो जाएगा, कार आपकी हो जाएगी। और अगर लीज पे लिए हैं तो वहां पे एक एग्रीमेंट होता है कि 10 इयर्स के लिए या 12 ईयर के लिए आपने लीज पे उसको लिया है और लीज के लिए रेंट आपको पे करना होता है। तो ऑपरेशनल लीज में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उस एसेट्स को एट द एंड ऑफ टेन्योर परचेज करेंगे। बट फाइनेंशियल लीज में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि लास्ट ईयर में आपको ओनर ये ऑफर प्रोवाइड कर सकता है कि आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो सेकंड वन इज सप्लायर्स क्रेडिट। The concept of supplier credit is fairly simple and in existence for a long time. Under this, the equipment supplier provide long-term credit and accept the payment for the supply of equipment over a longer period of time, say 5 to 8 years. So suppliers credit यहाँ पे जो मशीनरी का सप्लायर है वो आपको ऑन क्रेडिट सप्लाई कर सकता है कि 5 साल या 8 साल में आप हमको पैसे दे दीजिएगा टाइम टू टाइम। सो जस्ट लाइक हायर परचेज सिस्टम की तरह है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर आपको क्रेडिट देता है कि आप 4 या 5 साल में पैसा दे दीजिएगा धीरे धीरे करके। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज वगैरह ये नहीं करेगा। इन दैट प्रोसेस द कंपनी व्हिच एक्वायर्स द एसेट नाइदर टेक बैंक लोन nor approach leasing company for credit but directly takes the credit from the supplier of the equipment. अगर आप हायर परचेज और लीज के थ्रू जाते हैं तो वहां पे आपको एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एडिशनल रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सप्लायर्स अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, सप्लायर्स क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि 8 साल या 9 साल में हमें दे दीजिएगा, देन यहाँ पे आप बेनिफिटेड रहेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज एसेट सिक्योरिटाइजेशन। Securitization is fairly a simple concept. It is the process through which an asset is converted into financial claim. In other words, it brings liquidity to an liquid assets. The concept is very popular in housing finance. तो अब यहाँ पे आप एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। इट इज अ वेरी यूनिक टेक्निक। बैंक का अपना ऑपरेटिंग बिजनेस क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोन देना। बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन इसलिए देती है ताकि उस पर वो इंटरेस्ट कमा सके। अब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देगी तो उसके बैंक के पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। बैंक के पास ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि बैंक के पास पैसे एकदम रखे हुए हैं, वो देता ही जा रहा है। तो बैंक को भी शॉर्टेज होता है कैश का, क्योंकि वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे, लेकिन उसके पास चूंकि कैश की अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसके कारण वो कैश नहीं दे पाता है, लोन ज्यादा नहीं दे पाता है। उस केस में बैंक एक सिस्टम को डेवलप किया है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। क्योंकि जब भी आप लोन पे, अगर कोई हाउसिंग लोन आपने लिया है, घर के लिए लोन लिया है, तो घर का टोटल जो ओनरशिप है वो बैंक के पास रहता है। आप जब तक उसका पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, घर आपके नाम पे नहीं होता है। सो बैंक क्या करती है कि आपके घर के कागज को, उसको इलिक्विडेट को लिक्विडेट बनाकर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच देती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और उस पर सर्टेन वो इंटरेस्ट पे करेगी बैंक। तो बैंक हाउसिंग, जो आपका हाउस था उसके कागज को उसने बेच दिया किसी और को, और वहां से वो इंटरेस्ट पे कर रहा है और इंटरेस्ट आपसे लेता है और उसको कुछ सर्टेन पार्ट इंटरेस्ट पे करता है जो हाउसिंग फाइनेंस का वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है बैंक के अंदर।
तो बैंक आपके ही कागज को किसी दूसरे को सेल कर देती है और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उसको उससे वो कैश ले लेती है और कैश लेकर उसको इंटरेस्ट देते रहती है। इससे हुआ क्या, बैंक के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो गया और ज्यादा से ज्यादा वो लोन देना चालू कर देगा। सो सेकंड टेक्निक इज वेंचर कैपिटल। Venture capital, while leasing higher finance suppliers, credit or securitization or debt financing. So venture capital, I have already discussed in previous class. Venture capital is a equity finance. Venture capital is investment in early stage high growth projects which are high risk with the potential to give extraordinarily high returns over a period ranging from 3 to 7 years. The risk factor being high, the probability of failure is also high. The returns to the venture capitalists are from the handful of the projects which succeed. यानी आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, लेकिन आपके पास कैपिटल की कमी है जिसके कारण आप अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट मार्केट में नहीं करवा पा रहे। तो वहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के यहां लेके जाइए, दैट मींस जिसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट उसे अच्छा लगेगा तो आपकी कंपनी का इक्विटी शेयर लेकर वो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर देगा और बोलेगा जाइए आप अपना बिजनेस कीजिए। सो अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी भी इसमें पीछे नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके पास आते हैं और उनको जो प्रोजेक्ट अच्छा रहता है उसमें आंख बंद करके वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बोलते हैं आप जाइए बिजनेस कीजिए, और आपकी कंपनी का वो इक्विटी शेयर ले लेंगे क्योंकि उनको पता रहता है कि आपकी कंपनी मार्केट में कितना सर्वाइव करेगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, मार्केट पोटेंशियल अच्छा है आपके प्रोजेक्ट का, तो वहां पे आपकी कंपनी बहुत आगे लीड करेगी। और वो कैपिटल पे इसलिए किए हैं क्योंकि आपकी कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसमें से कुछ पार्ट मुकेश अंबानी हो जाएगा। सो वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत सोच समझकर ही आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर चले जाएंगे तो वहां पे वो कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ही रिस्की है। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वेंचर कैपिटलिस्ट का सारा पैसा डूब जाएगा। So next point, non-traditional services of short-term financing. That is commercial paper. I have already discussed in previous class. It is an instrument of money market. Commercial paper, commercial bill, certificate of deposit, factoring. So commercial papers, companies with good credit rating can raise money directly from the market for working capital purpose by issuing commercial paper. Commercial papers are unsecured notes but negotiable and hence liquid. So factoring service, second one is factoring service. हमने बोला था कि बहुत सारे कंपनी डेटर्स को मतलब ऑन क्रेडिट सेल करते हैं, दैट मींस कि वहां पे उन्होंने उधार पे दे दिया है बहुत सारे डेटर्स को। अब डेटर से कैश कलेक्शन करना है, यानी कोई भी जब क्रेडिट सेल होता है तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि हम विद इन 1 मंथ आपको पैसा दे देंगे। लेकिन वहां पे चूंकि बड़ी कंपनी होती है तो वहां पे बहुत सारे डेटर्स होते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है पैसा कलेक्ट करने में कि कौन उधार लेके गया था, कब उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, कब मांगना है। उतना मशीनरी नहीं रहता है बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर। तो एक फैक्टरिंग सर्विस को वो अडॉप्ट कर लेता है कंपनी, यानी फैक्टरिंग कंपनी एक अदर कंपनी है जो कस्टमर से पैसे मांग के लाता है और कंपनी को दे देता है, और कंपनी उसके लिए उसको कमीशन देता है। यानी कंपनी अपने ही डेटर से कैश को कलेक्ट नहीं कर पा रही है, वो किसी अदर थर्ड पार्टी को वो आपका डेटर का लिस्ट दे देती है और थर्ड पार्टी डेटर से कैश को कलेक्ट करता है और फिर कंपनी को लाके देता है और बीच में उसको कमीशन मिलता है। So factoring is essential, a management service designed to help firm better manage their receivables. It is in fact a way of offloading a firm's receivable and credit management on to someone else. So next block is block 5, strategic financing decisions. This block contains 3 units. Unit 13, capital restructuring. Unit 14, financial engineering, and Unit 15, investor relations. So capital restructuring, that means कि आपके पास पहले कैपिटल का क्या फॉर्मेट था, डेट के थ्रू हाउ मच कैपिटल इन्वेस्ट थ्रू डेट और हाउ मच कैपिटल इन्वेस्ट थ्रू
इक्विटी। सो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स कि कैपिटल में आप कुछ प्रोपोर्शन चेंज करना चाह रहे हैं, डेट इक्विटी मिक्स को आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो कभी हो सकता है कि अगर लोन सस्ता है तो आप मार्केट से लोन ज्यादा उठाएंगे, तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग उसमें भी होगा। अगर लोन कॉस्टली हो चुका है तो आप इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करेंगे, जिससे आपका कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग होगा। तो ये डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनवायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, ये सब मैटर करता है फैक्टर कि आपका कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग होगा या नहीं होगा। सेकंड वन इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग दैट मीन्स कि आप कैसे अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप इनहैंस कर रहे हैं, दैट मीन्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कि आपके पास सिर्फ डेट, इक्विटी, लोन ये सब ऑप्शन नहीं है, बल्कि आप डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से भी पैसे बहुत कमा सकते हैं। सो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को किस किस तरीके से आप डील करते हैं, कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट आपका ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, वो आपको बताता है। सो यूनिट 13 कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट्स आर provide an understanding of concepts, motives and dimensions of corporate restructuring. So explain concept, forms and motive of mergers. Mergers means एक कंपनी दूसरी कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, आपस में मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड मर्जर। आपने देखा होगा कि बैंक के केसेस में मर्जर आजकल बहुत चल रहा है। इलाहाबाद बैंक को उसमें मिला दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक को मर्ज कर दिया गया है किसी में। So third one is assess merger as a source of value addition. So provide an understanding of criteria for determining exchange rate. Explain process entailed in formulating merger and acquisition strategy. Throw light on divestiture and its financial assessment. Explain leveraged buyout, leveraged recapitalization, spin-offs, carve-outs, reorganization of capital, and financial reconstruction. So, the structure of these units are introduction part, corporate restructuring, financial restructuring, assessing merger as a source of value additions, formulating merger and acquisition strategy, regulation of merger and takeovers in India, takeover strategy, India experience, divestitures, characteristics of and prerequisites to leveraged buyout success, leveraged recapitalization, reorganization of capital, financial reconstruction. So next units are units 14, financial engineering. The objective of this units are to provide an overview of financial engineering and the process involved therein. Focus on newly emerging fixed income products. Like हम example आपको बताया derivatives, options, futures, swaps, etc. Focus on newly emerging equity products. Explain derivatives products developed by financial engineering, etc. So the structure of this units are introduction part, factors contributing to financial engineering process, financial engineering in fixed income, securities, financial engineering in equity products, financial engineering in derivatives like option, futures. Next unit 15, investors relations. So this unit involves certain objectives like explain the corporate form of business organization and the need for maintaining investor relations. Highlight the importance of investor relationship for the corporate form of business organization. So pinpoint the different forces that demand for information from the companies
and varying purpose for which it is demanded by the stakeholders. Who is a stakeholder? I have already discussed in previous class. Those who are directly or indirectly connected with the company. So आप स्टेक होल्डर में क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, ये सारे को ले सकते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी कंपनी के साथ कनेक्टेड है. Bring out the rationale for corporate governance in building by good investor relations. तो जितने भी आप इन्वेस्टर्स से रिलेशन अगर आप जितना इंप्रूव करेंगे, जितना हेल्दी आप इन्वेस्टर से रिलेशन रखेंगे, वो उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सिंपल ये वही है कि आपने अगर कहीं से लोन लिया है, अगर बैंक से आपने लोन लिया है तो टाइम टू टाइम उसका ईएमआई आप पे करते रहे. आप बॉन्स से बचते रहे कि आपका ईएमआई बॉन्स हो चुका है या आपने लोन को नहीं चुका पाए, तो यहां पे इन्वेस्टर से रिलेशन आपका खराब होगा. सो जब भी आप कभी लोन लेते हैं कहीं से भी, कोई भी हाउसिंग लोन है, कार लोन है या आप कोई कमोडिटीज लोन लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप टाइम टू टाइम उसको पे करते रहे तो रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा. और इन्वेस्टर से रिलेशन अच्छा रखेंगे तो आपको कभी भी कैपिटल की इनएफिशिएंसी नहीं होगा, कैपिटल की डिफिशियंसी आप कभी नहीं झेल पाएंगे. So next objectives are explain the advantage achieved from being a good governance company. So this units, a structure of this units are introduction part, corporate form of business organization, demand for information, transparency and disclosure, corporate governance and investor service. सो स्टेक होल्डर में आपका इन्वेस्टर भी आता है और स्टेक होल्डर से ही रिलेशन आपको सही रखना है, कस्टमर से रिलेशन सही रखना है, अपने सप्लायर से रिलेशन सही रखना है. अब सप्लायर भी आपको अल्टीमेटली एक क्रेडिट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. लाइक आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आप प्रोड्यूसर कंपनी है, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका है, और अगर आपने कहीं से सप्लायर के यहां से आपने रॉ मटेरियल लाया तो ये जरूरी नहीं रहता है कि आप कैश पेमेंट करके ही रॉ मटेरियल लाते हैं. अगर आपका बिजनेस अच्छा है और क्रेडिट सप्लायर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो आपको क्रेडिट प्रोवाइड वो करता है. दैट मीन्स कि आपको उधार पे दे देता है. सो अगर रिलेशन आपका अच्छा है सप्लायर से तो सप्लायर आपको 1 महीने 2 महीने के लिए आपको ऐसे ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देगा जो आपके लिए एक तरह का कैपिटल जनरेट करने का सोर्स बन जाता है. वर्किंग कैपिटल को आप इनहैंस कर सकते हैं उस बेसिस पे कि 2 महीने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं. सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. आप सुनते सुनते आप बोर तो नहीं हो जाते हैं? आप सुनते सुनते नहीं, कितना तो बोर हो जाते हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं. हालांकि हम लोग का सब्जेक्ट ऐसा है कि हर कोई समझ सकता है कुछ कुछ बात. अच्छा एमबीए आपका भी? अच्छा एचआर से आप ही क्लास करना कीजिए. नहीं तो हमको टाइम कहाँ है उतना सुनने का. इतना ही हम वो बनाते हैं जीके का, मेरा यूट्यूब चैनल चलता है. अच्छा. वेबसाइट भी है. यूट्यूब चैनल आपका है? हाँ वेबसाइट भी है, उससे भी बढ़िया आपकी आता है. चलता रहता है कोई दिक्कत नहीं. अरे उठ जाने के बाद भी क्या कर रहा है. इसलिए टाइम पे ही हम एक ऐसे में ही छोड़ देते हैं कि आगे पीछे होता है.